Hello students, welcome you to the biology online classes. So myself your teacher Jolly Singh and I was teaching you the chapter The Living World. Okay? So in the previous class we have studied about the basic features of the living organisms. We have gone through all the living features. Na living organisms के कितने different features होते हैं? We have gone through that. And we have found that there were two defining features of a living organisms. One was cellular organization and the second one was consciousness. You all are aware of that. So basically students, we are to read 4 to 5 topics from this chapter. Let me show you what are the different topics which you are to learn. First, the basic property of living organisms. Right? So this is the first and basic property. First point which we have already done. If you have not read or not got it, you will get it in my first and second lecture. So you can go and watch there. Okay? I have already shared with you. Second topic which is to learn is biodiversity. Right? Third topic, systematic study of any organisms. Right? Third one is to systematically study of any organisms. Fourth point is taxonomy and systematics. And number fifth point is taxonomical aids. So basically these are the five topics which we are to learn from this chapter, among which we have completed the first one. ठीक है, हम लोगों ने first one complete कर दिया, basic property of living organisms. So today we will try to complete the biodiversity and the other parts. So let's move on to the new topic. So today's topic is biodiversity. So let me introduce the term biodiversity to you. So here I have already discussed in the classes that the meaning of bio, right? Bio means life. Bio का मतलब होता है life, and diversity, it means different forms. Different forms. So we can conclude by the meaning of the word that life of which is existing in the different forms. So what do you mean by biodiversity? The definition goes like that. The enormous variety of life forms that exist over the earth surface. Right? So जितने भी लाइफ फॉर्म्स इस अर्थ सरफेस में हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. वी नो दैट आवर अर्थ, आवर वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी. हम क्यों बोलते हैं रिच इन बायोडाइवर्सिटी? ओनली बिकॉज वी आर हैविंग अ प्लेंटी एंड नंबर ऑफ प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स इन आवर वर्ल्ड. सो वी आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वी आर हैविंग? वी आर हैविंग प्लांट्स, वी आर हैविंग एनिमल्स, and we are also having microbes. ठीक है, प्लांट से, एनिमल से और माइक्रोब से हमारे पास इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. इसीलिए वी आर टेलिंग दैट वी आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी. आवर अर्थ सरफेस इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी. वी नो दैट इन प्लांट्स ऑल्सो वी आर हैविंग डिफरेंट कैटेगराइजेशन. प्लांट्स में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, राइट? वी आर हैविंग हर्ब्स, वी आर हैविंग श्रब्स, वी आर हैविंग ट्रीज, वी आर हैविंग ग्रासेस. इन एनिमल्स ऑल्सो अगर आप सोचो, एनिमल्स में भी कितने टाइप के हैं. फ्रॉम द इफ यू रिमेंबर फ्रॉम दैट अप टू फ्रॉम द सी एनिमल्स, है ना, जो सी सर्वाइविंग एक्वाटिक लाइफ से लेकर टेरेस्टेरियल तक, एम्फीबियन से लेके जैसे कि फ्रॉग, टाइगर, कार्निवोरस एनिमल्स, ओमनिवोरस एनिमल्स, वी ह्यूमन बींग्स, ऑल आर कमिंग अंडर दिस ग्रुप एनिमल्स. एंड माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस, दिस ऑल द आर द ग्रुप्स ऑफ द माइक्रोब्स. सो ये सब लाइफ फॉर्म्स है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो अपने अर्थ के ऊपर मिलते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं इस टर्म को बायोडाइवर्सिटी. वी आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी. So you will be very much astonished to know कि till date we have
1.7 million to 1.8 मिलियन स्पीशीज, ठीक है, 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज हमको मिले हैं आज तक. इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही है. दिस इज द अप्रॉक्सीमेटली स्टडीड वैल्यू. 1.7 million, that is 17 lakhs to 18 lakhs species are there in our earth, but still more to come. There are more organisms which are still undiscovered, which are left undiscovered. So might be among you people some scientists will rise and they will discover some plants, some animals, some microbes. They are going to discover. So all the best for all that, and I hope that you must become some scientists so that we can get a new organisms or new life in this earth, and we can study it better and make it beneficial for us. Okay, so many things are, many living organisms are found in between this, right? But still more to come, still more yet to discover. So you will be much more astonished to know that यहाँ से plants से, animals and microbes से, which are the group of living organisms dominating in this world. So it is your animals. So animals are the group of living organisms who are dominating. Dominating मतलब सबसे ज़्यादा highest, right? Highest है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा animals. और animals में भी पता है आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन है? It is insects. Insects are the most dominating organisms or dominating animals in this world. It is carrying about 10 lakh species. The population is about 10 lakhs. So insects का अकेले का population हम बात कर रहे थे 17 लाख से 18 लाख, लेकिन 10 लाख insect ही लेके बैठा हुआ है. तो समझ सकते हो insect में कितना ज़्यादा variety है, कितने ज़्यादा variations है, right? So this is the thing about the biodiversity. ये सब everything is mentioned in your NCERT book, ठीक है? You can go through the NCERT about the biodiversity topic and you will find all this. These are the information which are given in your book. So go through that and even you can learn from the videos. तो वीडियो से आप देख लोगे और फिर वहाँ से कॉपीज में आप नोट बना लोगे, ठीक है? तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे कि आएंगे, आपका कौन से सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पे आपको एनिमल्स बोल देना है. एनिमल्स में कौन से ज़्यादा डोमिनेटिंग है वो आपको इंसेक्ट्स बोल देना है. अगर ये 1 मार्क में आते हैं. और अगर आपको पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यू आर टू लाइन दैट गिव दिस वन, द एनॉर्मस वैरायटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट ओवर द सर्फेस इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी. दैट्स इट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द न्यू टॉपिक which is referred to as taxons. तो हमारे पास एक नया नाम आ गया, taxon, ठीक है? taxon क्या है? This is a group of living organisms having similar characteristics. राइट? सो टेक्सॉन का डेफिनेशन क्या हुआ? ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू एग्जाम्पल. एनिमल्स, ठीक है? एनिमल्स, या फिर हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में इसको किंगडम एनिमेलिया बोलते हैं. किंगडम माने सब बहुत बड़ा यूनिट में हम कैरी कर रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया. नाउ सी एनिमल्स. एनिमल्स में हम किसको बोलते हैं, किसको किसको इंक्लूड कर रहे हैं? हम अपने आप को इंक्लूड करते हैं. ह्यूमंस, वी ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल, coming under animal. Then we can include amphibians. Then we can include what? Amphibians के बाद हम कर सकते हैं terrestrial animals are there, ठीक है? उसके बाद हम और include कर सकते हैं birds are there, reptiles are there, ठीक है? insects are there, many animals are there, right? But see, we all belong to which kingdom? We all belong to Animalia, right? We all belong to kingdom Animalia. That means human beings, amphibians, terrestrial animals, birds, reptiles, insects, we all are having some similar characteristics. That is why we are grouped under a kingdom which is termed as Animalia. Now if we talk about the plants, see, if we talk about the plants, we can have the herbivorous plant, herb है ना, shrub,
we can have trees, like that. They all are having similar characteristic, that is why they are grouped under plants. Same goes with microbes too. अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो सेम, it is having bacteria, it is having fungus, right? Many are there. ठीक है, तो based on the common characteristics we are, or plants are, or animals are, or microbes are grouped into small groups, or they are grouped into different, you can say, living organisms. एक ग्रुप में एक फॉर्म हो जाते हैं जिसको ही हम टेक्सोन बोलते हैं. मतलब हम ह्यूमन बींग्स का, एम्फीबियंस का, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, इंसेक्ट्स का, सबका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम लोग किंगडम एनिमेलिया में बिलोंग करते हैं. प्लांट्स का जैसे कि हर्ड है, श्रब है, ट्रीज है, जितने भी है सब प्लांट में है. मतलब सबके पास क्लोरोफिल होगा, सब लोग अपना मैन्युफैक्चर करते हैं अपना खाना अपने आप सनलाइट के थ्रू, ऐसा, राइट. माइक्रोब्स स्मॉलर होते हैं, दे डू नॉट हैव मोर सेल्स, राइट, दे आर यूनिसेलुलर. तो ऐसे करके यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक इन नेचर्स. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे जिसकी वजह से दे आर ग्रुप अंडर माइक्रोब्स. तो ऐसे ग्रुप को, इधर वो बड़ा ग्रुप हो या फिर छोटा ग्रुप हो, ऐसे, तो हर एक ग्रुप को हम टेक्सोन बोलते हैं. इज इट क्लियर? टेक्सोन का मतलब हो गया एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स which are having similar characteristics. That means we all are sharing some similar characteristics because of which we are grouped under kingdom Animalia. So this is referred to as taxon. अब आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक ही टेक्सोन एनिमेलिया है, प्लांटी या फिर माइक्रोब्स, ऐसा नहीं है. टेक्सोन ह्यूमंस भी हो सकते हैं. एक ह्यूमन का जो टेक्सोन, सपोज वी आर ग्रुप्ड अंडर मैमल्स, तो इसके बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स भी है. तो मतलब ग्रुप हम जो बोलेंगे, ह्यूमंस के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप है ना. एनिमल्स के अंदर जैसे कि ह्यूमन एक ग्रुप है, एम्फीबियंस एक ग्रुप है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक ग्रुप है, बर्ड्स एक ग्रुप है, रेप्टाइल्स एक ग्रुप है, इंसेक्ट्स एक ग्रुप है. तो हर एक छोटे छोटे ग्रुप्स को भी हम टेक्सोन बोलेंगे और बड़े वाले को भी हम टेक्सोन बोलेंगे. दैट्स इट अबाउट द टेक्सोन. टेक्सोन का मतलब हो गया एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. Systematic study of any organisms, that means living organisms, we are much appropriate if we use it. It is the living organism. Systematic study of any living organism. आपके पास कोई भी living organism, suppose you are a scientist and you are going to discover a new organism. आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं, कहीं पे विजिट करने जा रहे हैं, एंड वहाँ पे आपको कुछ एक अजीब सा स्पीशीज देखा. लेट मी ड्रॉ ए डायग्राम. ऐसा टाइप का आपको कुछ स्पीशीज दिखा. दिस इज एलियन टाइप है ना, हम उसको जिसके बारे में हम जानते हैं उसको हम एलियन बोल देते हैं. तो ऐसा करके कुछ आपको कुछ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म एक देखने को मिला. चलो लेट्स टेक इट एज अ एक्स, मिस्टर एक्स. ठीक है, मिस्टर एक्स या मिस एक्स जो भी बोलो. ठीक है, सो दिस इज ए न्यू ऑर्गेनिज्म विच यू हैव फाउंड हियर. आप कहीं पे विजिट करने जा रहे हैं और वहाँ पे आपने आपको एक नया ऑर्गेनिज्म को देखा. ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप देखेंगे इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को. व्हाट डू मीन बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? आप देखेंगे कि ये दिखता कैसा है, हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक. क्या ये प्लांट जैसा दिखता है, क्या ये एनिमल्स जैसा दिखता है? ना, ये माइक्रोब्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दिख रहा है. माइक्रोब्स तो आंखों से नहीं दिखते, राइट. तो ये क्या चीज़ है? तो आप इसका क्या करोगे? एक्सटर्नल स्टडी को, एक्सटर्नल फीचर्स जो है, एक्सटर्नल फीचर्स को ही हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल बिहेवियर्स जो है, जैसे कि हाथ पाँव, फिर आपका शक्ल, आपका आँखें, नाक, जो भी है. ठीक है, स्किन्स, हेयर्स, नाखून, सब कुछ आपका मॉर्फोलॉजी में आता है. तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम सबसे पहले इसका स्टडी करेंगे कि नहीं? वी विल स्टडी दैट. सो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कैरेक्टराइजेशन. वी विल कैरेक्टराइज इट अकॉर्डिंग टू इट्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के थ्रू हम इसको कैरेक्टराइज करेंगे. चलो, हमने इसको कैरेक्टराइज कर दिया. मिस्टर एक्स इज नाउ कैरेक्टराइज्ड एज, यस, इट इज अ मेल. ओके, दैट इज व्हाई आई एम टर्मिंग इट एज अ मिस्टर एक्स. ओके, एंड इसके 2 सिंग हैं, इसके हाथ पाँव है, इसके आँखें हैं, इसका मुंह है,
और ये कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, किसी के हेल्प से खाता है, मतलब अपने आप कुछ नहीं कर पाता, दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग सम सिमिलरिटी विद द एनिमल्स एंड विद सम सिमिलरिटी विद द टेक्सॉन, वी कैन से एनिमेलिया, और वी आर टू से दैट सम सिमिलरिटी हमको मिल रहा है ह्यूमन बींग्स के जैसा, ठीक है। हम पहले देखेंगे एनिमल जैसा कुछ दिख रहा है, फिर देखेंगे कौन सी कैटेगरी में दिख रहा है, कौन से एनिमल, क्या ये बर्ड जैसा दिख रहा है, क्या इसके फीदर से, या फिर हम उसको देखेंगे क्या ये इंसेक्ट्स जैसा दिख रहा है, क्या ये रेप्टाइल्स जैसा दिख रहा है, या फिर ये डायनासोर के ग्रुप का है, ठीक है, या फिर एम्फीबियंस जैसा दिख रहा है, तो क्या है ये, कैसा कैसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। सो देयर हमको मिल गया कि ये ह्यूमन बींग्स जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स इसको इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया, अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टेक्सन में ये बिलोंग करेगा। आइदर ये एनिमल में रहेगा, एनिमल में तो है ही, ये ह्यूमन में रहेगा, रेप्टाइल्स में रहेगा, या फिर किस ग्रुप के टेक्सॉन में रहेगा, या फिर किस टेक्सॉन में रहेगा। तो इसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करेंगे, मतलब वी विल आइडेंटिफाई इट वेदर इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग और इट इज़ अ एम्फीबियंस और इट इज़ अ रेप्टिलियन, या फिर ये एप्स है। थर्ड, क्लासिफिकेशन। थर्ड व्हाट वी विल डू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब सिंपल यही है, जो हमने आइडेंटिफाई किया, सपोज ये ह्यूमन बींग्स की तरह दिखा तो हमने क्लासिफाई करके बोल दिया कि चलो इसको इस ग्रुप में डाल दो, ह्यूमन बींग्स के ग्रुप में डाल दो, ये इट इज लुकिंग लाइक अ ह्यूमन बींग एंड इट इज हैविंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू अ ह्यूमन बींग, दैट इज व्हाई वी हैव characterized it, we have first identified it, and then after identification we are going to put it in the classification. That means we have classified this Mr. X into a human being, ठीक है, into the human beings group. तो that is the meaning of classification. Classification में हमने क्या किया, हमने कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमने इसको एक ग्रुप में डाल दिया कंफर्मेशन करके, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप विच वी विल डू इज नोमेनक्लेचर, right, we will do this is nomenclature. Now nomenclature का मतलब हो गया, now if we have found a new organism in the human being group, है ना, उस human beings ग्रुप में हमको एक नया organism मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, as it is a new organism we are not going to name it as a Mr. X, we are to provide some good name to it. तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, we will give scientific name to it, we will provide scientific name. तो इसको कुछ रख दिया, होमो एलियंस ऐसा करके रख दिया, ठीक है। ये दिस इज नॉट द करेक्ट साइंटिफिक, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट, ये एक्स का नाम हमने रख दिया, ठीक है, ऐसे ही है, ये सही नहीं है, ये मैंने कुछ ऐसे ही रख दिया। तो नोमेनक्लेचर मतलब क्या हुआ, अब हम इसको प्रोवाइड करेंगे साइंटिफिक नेम, कुछ इसको नाम देंगे ताकि अब हम आइंदा से जब अगर ऐसा स्पीशीज को देखें तो हमको पता चल जाएगा, ओके दिस इज होमो एलियंस which was belonging to the human beings characteristics. तो this is the systematic study of any organism. हम जब भी एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब जब भी एक ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिकली अगर हम स्टडी करेंगे, अगर हमको उसके बारे में जानना होगा, तो वी आर टू गो थ्रू सेवरल पॉइंट्स. Characterization, first we are to characterize it, then you are to identify it, then you are to classify it, and after in the last we are to provide it a name, give it a suitable name. एंड अगर ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड है और आपको नया पता चला तो आपको नोमेनक्लेचर देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी मोर अबाउट द टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. सो अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वॉच द फुल वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांसेस है. एंड ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहला आप नोमेनक्लेचर कर दो फिर आइडेंटिफाई कर दो, ऐसा नहीं है. यू आर टू गो थ्रू द सिस्टमेटिक वे, ठीक है. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, मतलब आप याद कर लो ऐसे. सपोज CICN सीजन करके याद कर लो. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ऐसे करके याद रखने से आप लोग को ये टॉपिक पूरा अच्छे से याद रहेगा. एंड माइंडेड इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है ये जगह से, तो आपको ये जगह को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. अगर कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड वॉच द फुल वीडियो, ठीक है. तो थैंक यू फॉर टुडे.